Z5 has been churning out a lot of interesting content of late, which has a social message as well. So, what can we expect from the upcoming slate from Z5 after Banda? Thanks. I think fair point. We, like I said, we focus on customer, and customer likes good story. We bring them on. The slate is very big. In fact, on 19th there's a big slate launch event that you will see. Tonight. I won't take away the thunder from that. But huge number of stories with some great creators and producers are coming in, and Banda is just the start. So yeah, we are looking forward. But I'm sure that Banda is not the star of us. So all said and done, we are all excited about the next day to come. My other question was for Mr. Vinod. Yeah. So my question to you is that as the producer, how did you ensure that the ethos, the essence of Banga comes out in a very thoughtful and creative manner? The film is already made. We have made sure that Super and me and we had given this young boy, young man, the entire support what he needed to make this film. And I was surprised what Manoj has instilled that confidence in him because he was the guy who he was the Banda who told us that he should be directing the film. And let me tell you guys, we've seen the film and we are very happy that whatever the vision and whatever the reason to make this film has been achieved. I think you guys will see the film and be on the same page. Thank you so much. Hi, this is Reema from OTT Play. My question is to Vinod sir. Sir, with the nature of the film, it is bound to create controversies. So, are you ready to take the risk as a producer? You all are here and taken the risk to make the film. So I don't see a point where why should a true thing or story which is to be told should be shy away from controversies. So it's fine. Let them come. पद्मश्री मनोज वाजपेयी की जय हो। बंदा की सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कमाल का ट्रेलर है। मेरी सुपर्ण से मेरा सवाल ये है कि मनोज भाई बहुत कम लोगों के हाथ आते हैं, आप ऐसा क्या जादू है जो हर बार आप उनको पकड़ लेते हो? फैमिली मैन हुआ और कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट हुए, इस बार फिर पकड़ लिया आपने। फैमिली मैन तो मतलब राजनीति का प्रेम था जिसके मैं लड़ा आया, बट आई थिंक नंबर एक आई थिंक खुशकिस्मती है कि आई गेट टू वर्क and we have been associated together for the last 15 years, personally and professionally. And honestly, there's nothing we can't do. So it comes down to this कि जब भी प्रोड आता है जो चैलेंजिंग है, उसमें से एक नाम आता है वो मनोज वाजपेयी है। It appeals to him and I get to work with him every single day. मेरा दूसरा सवाल मेरे प्यारे दोस्त विनोद भानुशाली से है कि प्रोड्यूसर बनते ही पहला फिल्म किया जनहित में जारी, जो कि बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट था जिसको हाथ लगाने में लोग थोड़ा डरने की कोशिश करेंगे। दूसरी फिल्म आप ये बनाई, तीसरी अटल जी। तो क्या चाहते क्या हो आप? सब किस तरह के सब्जेक्ट का चुनाव आप कर रहे हो? क्या इस तरह की कंट्रोवर्सी झेलने के लिए तैयार हो आप? आप लोग डरा रहे हो कंट्रोवर्सी हम यहाँ कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, आप हो जाए कंट्रोवर्सी होगी। बट अगेन ये सारी जो भी फिल्में थी, आई थिंक फिल्म इन्फ्लुएंस सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, और अगर कोई चीज़ समाज की भलाई के लिए या लार्जर ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाने के लिए एंटरटेनिंग वे में बनानी हो तो देन मानचरी स्टूडियोज विल नॉट शाय अवे। एंड उसके लिए शायद हमें जब भी सपोर्ट मिला था जी का पूरी टीम का, एंड उसमें तो हमारे साथ। Hi, Apurv. My question is to you. You're on your left, Rashida, you're from People Moon. So, when you come on board to direct a topic that's very critical and you have to handle it well with sensitivity, did you face any challenges as such? Because here I see the star cast is incredible, all acclaimed actors you have, directed. How was the entire process like for you? I think it was amazing. और हमने काफ़ी 6-7 महीने की रिसर्च करी है इस फिल्म के दौरान, और राइटर जो है हमारे दीपक निगरानी, उसके साथ सुपन के साथ हम लोग ने 6 महीने का एक प्रोसेस बिताया था, समय बिताया था, जहाँ पर हमने सिर्फ रिसर्च करी। जब वो पार्ट हो गया फिर हम स्क्रीन प्ले पे आए,
तो आई थिंक चैलेंजेस होते हैं वो फिल्म प्रोसेस के दौरान ही होते हैं, और हमने साथ एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम को साथ देके वो चैलेंजेस वी वेंट ओवर दोज चैलेंजेस, एंड आई थिंक जो शूटिंग के चैलेंजेस हैं, आई थिंक वन मैन मनोज बाजपेयी जिन्होंने सारे चैलेंजेस हमारे खत्म कर दिए। हम सोच के आते थे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 1 घंटे में पैक करके खत्म, इतना अच्छा टेक दे देते थे। तो बट आई थिंक यस, वेरी ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट टीम एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव सुपन फर्स्ट। आई नो सुपन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुपन और मनोज से मेरे को इस प्रोजेक्ट पे लेके आए, एंड देन मिस्टर विनोद मनोशाली जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, तेरे पे मैं भरोसा कर रहा हूँ इसलिए। I think I'm very grateful to all of them, and then of course Manish sir and Zaid sir that for trusting me. So yeah. All the very best. हाय, संजय मिश्रा फ्रॉम नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे सवाल सबसे पहले मनोज जी से है। कहाँ पे है? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो लॉयर है इसको आपने बनाया कैसे है, क्योंकि इसके बहुत हिस्से होंगे, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करता है, लोकेशन की बात भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ तो बैकग्राउंड की स्टोरी जानना चाहता हूँ। आपके मन में वो स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जब हम फिल्म देखें तो आपकी बात को याद रखें। और वो ट्रेलर कैसा लगा संजय? बहुत सुंदर ट्रेलर है और आपका काम भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब आप किसी बहुत ही चर्चित आदमी का, बहुत ही महान आदमी जिसको पूरी दुनिया देखती रही है, उनके पास वीडियोस हैं, उनके फोटोज़ हैं, उनके हर दिनचर्या की कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तब उनको करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात का होता है कि हम एक्सटर्नली उनको सबसे पहले अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, वो एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। लेकिन जब आप एक कॉमन मैन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जिसने काम किया है, या उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, यहाँ पे मेरे जैसे कलाकार के लिए एक फ़ायदे की चीज़ हुई कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन जो है, मैं अपना नज़रिया उस कैरेक्टर के साथ डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के साथ उठूँ, बैठूँ, उनको जानूँ और उनकी नकल करने की कोशिश करूँ बाहरी तौर पर। अंदर में वो इंसान कैसा है, क्या इस केस को जब वो उन्होंने लिया तब उनकी मनोस्थिति कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जब वो केस से डील कर रहे थे तब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और कहाँ कहाँ पे वो वल्नरेबल हो रहे थे, कहाँ कहाँ पे वो कमज़ोर भी पड़ रहे थे, और कहाँ पे उनको किस जगह से उनको ताकत मिल रही थी। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो पूरे तरीके से इंसान लगे, ना कि वो शुरू से जब तक फिल्म खत्म नहीं होती है तब तक वो हीरो लगे। मुझे हीरो दिखाने, हीरो जैसे चलता है, बैठता उठता, वो सब दिखाने मुझे मेरी बिल्कुल इसमें कोशिश नहीं। इसीलिए मैंने सुपर्ण से और विनोद जी से और अप्पू से बोला था कि भाई मैं ये लोग कह रहे थे मुझे कि आप मिलिए उनसे किसी हिसाब से। मैंने कहा यार मैं बताऊंगा कि मुझे कब मिलना है, पहले मुझे कैरेक्टर बनाने दो, क्योंकि उनका जो एसेंस है, जिसके कारण वो पीसी सोलंकी हैं, उसको मैं अपने नज़रिए में डालना चाहता था, एक कैरेक्टर खड़ा करना चाहता था, मैं उनकी नकल नहीं करना चाहता। फिर मैं उनसे मिला, 2 दिन पहले मिला शूटिंग पे, उनसे बातचीत हुई और कुछ एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, उसको मैंने ले लिया, बाकी मैंने नकल नहीं की। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात ये है कि जब मैं अपने आप को मैं फिल्म में देख रहा था तो बहुत बार मुझे लगा कि पीसी सोलंकी साहब को देख रहा हूँ मैं। तो वो जैसे एक फिल्म की थी मैंने अलीगढ़, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर थे, लेकिन रिसर्च के नाम पे हमारे पास में सिर्फ एक आधे मिनट का एक इंटरव्यू था, उनका वीडियो क्लिपिंग, बाकी हम सबने बनाया था। लेकिन जितने लोगों ने सीरस साहब को देखा था या उनसे बातचीत की थी या उनसे दोस्ती थी, उन सब लोगों का मानना था कि जो कैरेक्टराइजेशन किया था वो बहुत ही उनके करीब था। तो मेरे ख्याल से आदमी जो है वो अपने अंदर की चीज़ों से बनता है। बाहर से अगर सिर्फ देखने जाता तो मैं सिर्फ किसी सोलंकी साहब की बाहर की चीज़ें नकल करता, फिर मैं भटक जाता अब उनको बनाने में। मेरा अगला सवाल शाहिद पटेल जी से है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं ZEE5 को देसी OTT कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले OTT हमने देखा था जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ थी।
और आप लोगों ने ऐसा कंटेंट बनाया है जो बिंज वॉच है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब कोई कंटेंट आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो किस तरह का सेंसर आप खुद भी करते हैं, और दूसरी बात है जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं आगे इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की क्या योजनाएं भी? जो Z5 के बारे में अभी मनीष बताएंगे कि वो हेड करते हैं Z5 का इंटरनेशनल। अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम लोग मनोज सर के साथ ही एक पिक्चर करी है जोरम करके, जो हमारी पिक्चर रॉटरडैम में भी सिलेक्ट हुई है और हिंदुस्तान में जाके काफ़ी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई है। और इस साल हमने प्राउड टू से कि जी स्टूडियोज़ एक ऐसा एकमात्र स्टूडियो है इंडिया का कि 3 अलग अलग पिक्चरें 3 प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई हैं। एक पिक्चर जो इसी महीने हम लोग लेकर के जा रहे हैं, अनुराग कश्यप की कैनेडी करके, वो कैंस में मिडनाइट स्क्रीनिंग में सिलेक्ट है, 24 तारीख को वहाँ का प्रीमियर है। एक मराठी पिक्चर हम लोग ने प्रोड्यूस की थी, आत्मा पैम्पलेट, जो बर्लिन में सिलेक्ट हुई, तो वहाँ पर हम लोग थे। और गोरम रॉटरडैम में थी, हिंदुस्तान में जा रही है सिटी फिल्म फेस्टिवल में। तो इंटरनेशनल स्तर पर एक जो वर्ल्ड सिनेमा है उस पर तो हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अभी। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा को रीच करने के लिए हमारे हमसे बेहतर कोई स्टूडियो है ही नहीं। हम लोग बहुत सारी पिक्चरें इंटरनेशनल रिलीज करते हैं, तो इंटरनेशनल स्केल रियली Z Studios is making lot of strides. Regarding Z5 के बारे में अभी मनीष आप इसका जवाब देंगे बेहतर होगा। तो आपका सवाल था कि हम एक देसी प्लेटफॉर्म कंटेंट को आप सेंसर ठीक कैसे करते हैं? हम बता रहे हैं। तो हम वी टेक प्राइड इन बीइंग द सन ऑफ स्टोरी। मतलब धरती का जो इंडिया को जानने वाले हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, बिकॉज पिछले 20 साल से जी लगा हुआ है इंडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करने में। जो हर बच्चे ने बचपन में भी आपने भी देखा होगा जी का सीरियल जिस तरह से ग्रो हुआ है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो इंडिया की लैंग्वेज है, जो कल्चर है और जो ऑडियंस को चाहिए, उसकी जो पल्स अगर हम पकड़ पाएँ और उनको वैसा कंटेंट दें तो बहुत ज़्यादा है। एक तो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो क्रिएटिव हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और बिकॉज हम ऑनलाइन OTT है तो डेटा बहुत आता है हमारे पास। लोग किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह की स्टोरीज देख रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, किस तरह की सिचुएशंस में ज़्यादा लोग एंटरटेन हो रहे हैं। तो वो सब मिला जुला के आई थिंक ऑब्जेक्टिव स्टेज की कस्टमर के साथ, उनके साथ जुड़ा कैसे जाए, उनके साथ कनेक्ट कैसे किया जाए और उनको रियल रिलेटेबल जिस तरह से बोलता हूँ स्टोरी जो उनको लगे अरे इसको तो मैं देख सकता हूँ, अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, अरे ये तो मेरी स्टोरी है। तो वो सब जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आई बिलीव इंडियंस के लिए कर रहे हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक शारिक ने बोला हमारा Z5 90 कंट्रीज में है और सारी इंडियन डायस्पोरा में नंबर 1 है इंटरनेशनली ऑलरेडी Z5 as a OTT platform. So that's an amazing thing, and yeah, we believe we'll do much better as we go along with the support of all the good people on this side. मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है, ट्रेलर देखा बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। एंड पोस्टर एक तरफ आपकी फोटो है, दूसरी तरफ क्योंकि ट्रू इवेंट्स के ऊपर है, ऐसा लगता है कि वो आसाराम से कुछ कलेक्शन होता है। अच्छा, तो मैं लखनऊ थिएटर में एक बड़े महान अभिनेता रंगमंच को समर्पित हैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी। आप कुलश्रेष्ठ जी आप जहाँ खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली बजाइए। उन्होंने रोल यही सवाल था। बहुत सारे और भी मेरे बहुत सारे अर्जुन वगैरह हैं पीछे, हमारे एग्जीक्यूटिव और अर्जुन हमारे कैमरामैन देखिए वहाँ पे। मैं सबको ऊपर बुलाऊंगा बाद में जब बड़े लोग नीचे चले जाएंगे। अगला सवाल। कोई मैसेज है इसमें पब्लिक के लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए? सोशल ये फिल्म एक सिंपल चीज से डील करती है, आस्था जी। हम सब की आस्था होती है, हम सब किसी न किसी को मानते हैं, एंड जब कोई इस आस्था के साथ खेले वो गलत है। और हम कंट्रोवर्सी, एक वर्ड 3-4 बार सवालों में पूछा गया, हम कोई कंट्रोवर्सी को करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट जहाँ तक हमारे लीड कैरेक्टर पीटी सोलंकी का किरदार है, ही यूजेस his own faith, his own belief in Mahadev.
against someone who has done his faith wrong. So we are all people of faith. We are all people of belief coming together to talk about one simple thing, that when millions of people put their trust in you, जहाँ आपको भगवान के साथ का दर्जा दें, तो उसको उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि गुरु होना एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है और जिम्मेदारी होती है। और हमारे देश में टचवुड गजब के गुरु रहे हैं। कुछ एक चंद लोग हैं जिनके चक्कर में कभी आस्था को ठेस पहुंची है, बट अगेन बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन जुडिशियल सिस्टम और द सिस्टम दैट वर्क्स, योर फेथ इज रिस्टोर्ड. सो इट कम्स डाउन टू दैट. Thank you for all the questions and some eye-opening answers. Thank you. एक आखिरी सवाल. ऐसे ही मुझको आवाज आ जाएगी. Yeah, my name is Sohail. एक सेकंड. Sorry. My name is Sohail. I'm from Ancient Bollywood. Manoj ji, Vinod ji, and the entire team. Trailer is superb. जब एक कहानी लिखी जाती है तो टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है बहुत सी बार कि जैसे कि अगर बंदा जो टाइटल है इट कुड बी लाइक बंदा बिंदास है या फिर पावर ऑफ अ कॉमन मैन. देयर मे बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाट हैव कम इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग और जब टाइटल डिसाइड किया जाता है तो कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग था. और मनोज जी आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है कभी जब स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो कुछ टाइटल को लेकर या जब लिखा गया था तभी ये टाइटल डिसाइड किया गया. एक हर स्टेज पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं अब उसके लिए और फिर रास्ता ढूंढते हैं. लेकिन कहीं भी एक चीज़ मैंने देखा और बहुत सारी फिल्में करने के बाद ये फिल्म बंदा में भी कभी भी किसी समय में हम ये नहीं सोचते कि यार ये टाइटल रख देते हैं, ये फिल्म से का है चाहे फिल्म से उसका वास्ता है चाहे नहीं है, रख देते हैं. बड़ा अट्रैक्टिव लगता है. हम लोग हमेशा एक दूसरे पर सवाल करते रहते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि जो सुझाव आते हैं वो आसानी से जल्दी पास होते नहीं हैं. जब बहुत सारे जिम्मेदार और लोग और क्रिएटिव लोग एक साथ जुड़ते हैं हर सुझाव का स्वागत है होता है, लेकिन उस सुझाव पे कई नज़रिए से उस पर बातचीत की जाती है. मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन का बड़े सीधा साधा रोल है. जब तक मुझसे पूछा नहीं जाता मैं बोलता नहीं. तो मैं मुझसे अगर पूछा गया कि भाई स्क्रिप्ट कैसी है तो पहले ड्राफ्ट के बाद मैंने जो सुझाव थे वो मैंने सुझाव दिए और थैंकफुली लोगों ने माना. आप यकीन नहीं करेंगे, अपूर्वा और दीपक किंगरानी जो इसके राइटर हैं इन लोगों ने 18 ड्राफ्ट किए हैं. इसके 18 ड्राफ्ट कम नहीं होते हैं. 3rd ड्राफ्ट मतलब 80 पेज 100 पेज की 125 पेज की स्क्रिप्ट को 18 बार उसको तोड़ के बनाना ये आसान काम नहीं होता है. और प्लस जितने सारे एक्टर्स हैं उन सारे के सारे लोगों के साथ में कितनी बार रीडिंग और उनको किसी के डेट होते हैं किसी के नहीं होते हैं, कुछ लोग शूटिंग में बिजी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग्स कितनी बार हुई. रिसर्च मटेरियल मेरे साथ साझा किया गया. मुझे कुछ एक चीज़ें गूगल्स पे या इधर उधर से रिसर्च मटेरियल उनके मिले तो और या जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे लगातार बात करता. तो हर चीज़ जो है हर स्टेप पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. अब ये सब बनने के बाद फिर आप जब एडिटिंग होती है तो आप जानते हैं कि एडिट पे अपूर्व पहले तो अपूर्व के जो एडिटर हैं उन्होंने काटा, फिर अपूर्व गया वहाँ पे उनके साथ मिलके उसको एडिट किया, फिर सुपर्ण आए, सुपर्ण ने फिर वापस पूरी की पूरी फिल्म को सबके साथ मिल करके. तो ईच एंड एवरी स्टेप इज very well thought out. It's not something that one person will come and give something and it will be 100% approved. No, it goes through very difficult process. That's why filmmaking is a very collaborative medium. But yes, the captain of the ship of this medium is the director.